political parties in the opposition have seen this as some sort of pressured agreement for a ceasefire. How do you deal with this when India was clearly on the winning spot, had the upper hand? There are two things to be understood in this. First, our target or objective was achieved on the very first day, that is the night of 6 and 7. Then when Pakistan tried to retaliate, it was given a very befitting and damaging reply on the night of 9th and 10th. So after that, one aspect I've already explained, there could have been a possibility of some sort of nuclear disaster in which we could not have been just left alone. Second thing, there has to be a proper strategy for long term. As Abhijit Iyer Mitra has also said, Sushant Sarinji has said, to grind the things up to a certain level, then go ahead. I give you one example. When Prime Minister Modi ji has called Nawaz Sharif in his swearing in 2014 and he went 2016, why he has went? He was knowing that Pakistan is going to do this. We were making a premise of justification and projecting India as a mature nation जो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, उनको कोई मौका देने की कि एक बार फिर मौका है तो मान जाओ. जैसे अशोक वाटिका उजाड़ी थी हनुमान जी ने और लंका दहन किया था, तो हनुमान जी में ही क्षमता थी, पूरे लंका को निपटा के आ सकते थे. और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस में लिखा है कि जब वो सीता जी उनसे कहती हैं तो क्या जवाब देते हैं हनुमान जी, अभई मां तुम्हें जाई लिवाई, प्रभु आये सुनहि राम दोहाई. मैं अभी ले जा सकता हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य है, पर इससे हमारे भगवान का और हमारे दल का यश नहीं बढ़ेगा. तो इसलिए फिर भेजा गया अंगद को, कहा गया अब ठीक है, ताकि हम भारत को शक्ति के साथ उनको वो भी करेंगे, उनको हैसियत पे भी ले जाएंगे और अपनी हैसियत भी दुनिया में ऊंची करके दिखाएंगे. इसलिए जो लोग इस मुगालते में हैं कि ये सीज फायर हो गया तो ये मंजिल आ गई, मंजिल नहीं है. ये हमारी बात का मील का पत्थर है. जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडस ट्रीटी रोकी गई है तो पानी बहना रोका गया, तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, मोदी जी किस दृष्टि से सोचते हैं, किस दूरदृष्टि से. अब तो कम से कम देश को 10-11 साल में समझ में आना चाहिए कि उन्होंने कुछ किया है तो क्या सोची होगी. तो एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया. भाई पानी उसमें कम हो रहा है ना, तो दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया. अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, पुरानी सरकारें होंगी जो मंजिल मान लेती थी, सीज फायर हो गया, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया. वेल विवेक साइलस जी, मानते तो हैं, डॉक्ट्रिन भी है, इरादा भी है, एंड ऑल दोज अमन की आशा टाइप्स आप लोग तो है ना. बात कर लीजिए आप लोग से, मेरा मतलब इंडिया अलायंस जो है या नहीं है, इस पर भी सवालिया निशान कल चिदम्बरम जी ने लगा दिया है. वेदर इट एग्जिस्ट, वेदर इट इज रिटायर्ड, हर्ट, और वेदर यू नो देयर इज एनी फ्यूचर फॉर इट, इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. बट these are strategies that probably should be understood by the opposition. Why is the opposition doing, हिंदी में एक वर्ड होता है ओछी राजनीति. Why is it doing this non-serious politics at a time when we are dealing with a country जिसके साथ आप लड़ चुके हैं, हम लड़ चुके हैं, मतलब सारी दुनिया ने देखा है कि इतनी वॉर्स हुई हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, हर वक्त एक ही उनका लहजा रहा है कि उन्हें हिंदुस्तान को खत्म करना है. Yet somehow it's taking so long to convince the opposition. Why? You know, the first question that was you taken in the debate was that can Pakistan be trusted? No, they cannot be trusted in any stretch of imagination. Secondly, Sudhanshu ji right now said there has to be a proper strategy. So what are we doing? We don't have a proper strategy. You mean to say that? And it was very incredible that what Mr. Gaurav Arya just said, that we have seen, Gaurav Arya said that we have seen foolish strategies in the past. We have won wars against Pakistan, be it in 1965, 71, even during the Atal Bihari Vajpayee ji's in 1999. And at that time also, India and Pakistan both were the nuclear powers. You also said, Navika ji, you asked the question to one of the panelists, Anand Ranganathan ji, who's running Pakistan?
I am telling you, it is Donald Trump who is running Pakistan. He said India and Pakistan are two great nations. शी जिनपिंग भूल गया, एर्दोगान भूल गया. हाँ. अच्छा हुआ आपने शी जिनपिंग का नाम, वो बार-बार सुधांशु जी प्लीज, अच्छा हुआ आपने शी जिनपिंग का नाम ले लिया. जब वॉर चल रही थी तब तो अडानी जी उनसे ट्रेड डील कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे. अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था. यहाँ पर युद्ध चल रहा था और वहां पर व्यापारिक सौदा हो रहा. दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प सेड कि हमने प्रेशर डाला और इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों एग्री कर गए सीज फायर के लिए. तो क्या आज सैंक्टिटी से बड़ा ट्रेड हो गया है सुधांशु जी? सीधी बात है. डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कल तो स्टेटमेंट अपना चेंज कर दिया ना उन्होंने. ही हैज सेड नो नथिंग सॉर्ट ऑफ मीडिएशन. और वैसे एक बात बताऊं, जो आपने बोला ऑन द लाइटर नोट, बात की बात में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान नहीं चल रहा है. वो चीन और अमेरिका के रहमो करम से चल रहा है. भाई तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान तो भिखमंगा देश है, उसके पास खोने के लिए कुछ है तो नहीं. लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जीरो टैरिफ. उस पे आपका क्या स्टैंड है बताइए ना. आप देखिए, जो आपने बात कही, नहीं जीरो टैरिफ की बात कर रहे हैं. अमेरिकन प्रेसिडेंट के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा ट्रेड. आप बता सकते हैं पाकिस्तान के साथ क्या ट्रेड है अमेरिका का? भीख मांगने वाले के साथ ट्रेड हो सकता है क्या? उन्हें कहना चाहिए कि उधर खैरात, ग्रेट नेशन क्यों कहा उनको? ग्रेट नेशन एंड ग्रेट लीडर. इंडिया और पाकिस्तान में तो व्हाई डोंट वी कॉन्ट्रडिक्ट? आप प्लीज यार मुझे बोलने दो. व्हाई डोंट वी कॉन्ट्रडिक्ट डोनाल्ड ट्रंप? अभी कंगना रनावत आपकी एमपी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया मोदी जी बड़े लीडर हैं, तीसरा टर्म है डोनाल्ड ट्रंप का, दूसरा ट्रम्प है. दूसरा वो क्या हुआ? अरे वो प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा. किसके कहने पे? जेपी नड्डा साहब के कहने पे. ये खौफ है डोनाल्ड ट्रंप का कि आपकी सांसद मोदी जी को ट्रम्प से बड़ा लीडर बताएं और ट्वीट डिलीट करें और ये कहें कि अब अगर खौफ की बात है तो सुन लीजिए. नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इन नॉट एनफ पर लिख गए कि मुझे फॉरेन मिनिस्टर से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका चाहता था. अब बताओ भाई, ये तो फॉरेन मिनिस्टर लिखा हुआ है मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट का. अब दूसरा खौफ समझ लीजिए. अब सुनिए, बकौल विकीलीक्स, मैं नहीं कहता कि विकीलीक्स में जो लिखा है वो सच है. राहुल गांधी जाके अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन से कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है. बकौल विकीलीक्स 2008 जुलाई में, जिस समय न्यूक्लियर डील साइन की जा रही थी, कांग्रेस के एक लीडर स्टीवन वाइट को जाके कहते हैं हमारे पास इतना पैसा हमने रखा हुआ है. सर, मैंने इसमें का आज तक खंडन किया है. एक बात और सुनिए, एक करके आपने तो 36 सवाल पूछे. अभिषेक मिश्रा जी ने बोला नहीं है. 2 मिनट दे दीजिए. सीनियर पार्टनर है आपके अलायंस के, एक चीज जो है या नहीं है एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है, पर सीनियर पार्टनर. 2 सेकंड मैं बस एक जानना चाहता हूं सुधांशु जी आपसे, बड़ा हम्बली पूछ रहा हूं क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूं. विपक्ष में होना ये नहीं है कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तान से हमको प्यार नहीं है. वो 4 आतंकवादी जो कि पहलगाम का अंजाम देख के यहां से चले गए, वो कब पकड़े जा रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए. और पुलवामा में जो अटैक हुआ था, उसका जो 400 किलो का आरडीएक्स हिंदुस्तान में आया था, वो आज तक क्यों नहीं खुलासा हो पाया? वो कहां से आया? ओके, देखिए, आपने जो कहा यही तो मैं कहना चाहता हूं. 4 आतंकवादियों के दद्दा, बप्पा, भैया सब तो निपटा दिए गए हैं. मतलब और आपने सुनिए, और वो भी पकड़े जाएंगे. अब आप जो बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, और रही बात इस पे, आप पुलवामा की बात करते थे, तो वहां तो फवाद चौधरी एज मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बोल चुके हैं कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा था. अब बताइए, उसके बाद उसी पुलवामा के समय में पाकिस्तान के नेशनल असेंबली को कोट कर रहा हूं, कोई हवा में नहीं, वहां का एमपी कहता है उस समय के फॉरेन मिनिस्टर को कोट करते हुए कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए और उनके पांव कांप रहे थे. ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे मिनिस्टर का दिया गया बयान है. और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा. बट अफसोस की बात यह है कि आज हमारे नेताओं के बयान. सर एक मिनट, अब मेरी भी बात का जवाब दे दीजिए. जो जम्मू कश्मीर, पूरी बात सुनिए, एक मिनट टर्न पे बोलिए, बेटर रहेगा. हमारे नेताओं के बयान पाकिस्तान में कोट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री के कॉन्फ्रेंस में कोट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के भारत के विरुद्ध डोजियर में कोट किए जा रहे हैं. और उसके बाद चुनौती देके कहता हूं, हम अपोजिशन में थे, हमारे किसी एक नेता का बयान कोट किया गया हो पाकिस्तान ने अपने फेवर में, तो बताइए.